Bismillahirrahmanirrahim. Now we are moving towards our another lecture, and what we were discussing about the role of small intestine and how it affects what are their main functions and how it affects the drug absorption. And we have already covered several parts, and we were discussing about the surface area approximately and in adult and its shape, several adaptations which make the small intestine such a good absorption site. This is which we have left in the last lecture. यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था कि यहाँ पे देयर आर सम एडेप्टेशंस इन स्मॉल इंटेस्टाइंस, जिसकी वजह से वहाँ पे सरफेस एरिया जो होता है एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल फोल्ड ऑफ Kerkerings. Fold of Kerkering, these are the submucosal folds हैं submucosa में, which extends circularly most of the way around the intestine and are particularly well developed in the duodenum and jejunum. खास तौर से duodenum में और jejunum में बहुत ज़्यादा well developed है. They are several millimeter in depth, और ये several millimeter in depth है, तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है. एंड नाउ द विलाई. These have been described as finger-like projections into the lumen. ये क्या है? finger-like projections है lumen में. Approximately 0.5 millimeter to 1.5 millimeter in length and 0.1 millimeter in diameter. They are well supplied with blood vessels. Each villus contain an arteriole and a venule and a blind ending lymphatic vessels or lacteals, and the structure of villus is shown in figure 19.5. जो विलाई का स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पर डायग्राम मौजूद है. दिस इज विलाई, स्ट्रक्चर ऑफ द विलस, और ए सिंगल विलाई इज हेयर. लुक हेयर, दिस इज गॉबलेट सेल, माइक्रोविलाइज, crypt of Lieberkühn, and venules, lymphatic vessels. This is arterioles, this is venules, and lacteals or lymphatic vessels for fats absorption. And this area is richly supplied with blood capillaries. That is why this is very good surface area, and this is really a very good place for the absorption of the drugs as well as foods. Now microvilli, we have seen here that there are some microvilli which further increases the surface area. 600 to thousands of these brush-like structures, approximately 1 micrometer in length and 0.1 micrometer in width, cover each villus. हर villus के ऊपर मौजूद होते हैं, and providing the largest increase in the surface area. Like I have told कि ये जो है वो और surface area को बढ़ा रहे होते हैं absorption के लिए. These are covered by fibrous substances known as glycocalyx. Glycocalyx से ये covered होते हैं. The lumen of the pH and the small intestine increases the pH from between 6 to 7.5. इसका जो pH है lumen का of small intestine, that increases, यानी स्टमक से बढ़ के अब ये अल्कली की तरफ जाना शुरू हो जाता है from 6 to 7.5. Sources of secretion that produces these pH values in the small intestine are, यानी वो कौन सी secretions हैं जो pH को बढ़ा रही होती हैं. नंबर 1, Brunner's glands. Brunner's glands क्या है? These are located in the duodenum and are responsible for the secretion of bicarbonate, means sodium bicarbonate, which neutralize the acid emptied from the stomach. यानी स्टमक से जो एसिडिक फूड मटेरियल आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है ये जब वो ड्यूडेनम में या जोजेनम में एंटर होता है. इसके बाद है हमारे पास intestinal cells. These are present throughout the small intestine and secrete mucus enzymes, and these enzymes are hydrolases, proteases, and that continue the digestive process. तो intestinal wall से ये एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि प्रोटीजेज यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलेसिस हैं जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं. इसके अलावा फर्दर सिक्रीशंस आर पेनक्रियाटिक सिक्रीशन. द पेनक्रियास is a large gland that secrete approximately 1 liter to 2 liter of the pancreatic juice per day into the small intestine via duct, and this duct is called pancreatic duct.
यानी पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए पेनक्रियाज जो कि एक ग्लैंड है वो 1 लीटर टू 2 लीटर पर डे पेनक्रियाटिक सेक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। द कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूसेस, क्या क्या है पेनक्रियाटिक जूसेस में? सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि अल्कलाइन करता है सब्सटेंस को, एंड एंजाइम्स। द एंजाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीएजेस यानी जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, प्रिंसिपली ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज, जिसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोऑक्सी पेप्टिडेज है, विच आर सिक्रीट, ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, विच आर सिक्रीटेड एज inactive precursor or zymogens and are converted to active forms in the lumen by the enzyme enterokinase। lumen में एंजाइम होंगे enterokinase जो inactive एंजाइम्स को यानी ट्रिप्सिनोजेन, कैमोट्रिप्सिनोजेन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा लाइपेज एंड एमाइलेजेस, These are the additional enzymes are both secreted into the active form, ये active form में आते हैं, inactive form में नहीं आते। The bicarbonate component is largely regulated by the pH of the chyme delivered into the small intestine from the stomach, means के अगर ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस आ रहा होगा तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा रिलीज़ होगा यहाँ पे ताकि pH को बढ़ाया जाए, और अगर कम एसिडिक मटेरियल होगा स्टमक से आने वाला तो फिर बाइकार्बोनेट की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो सिक्रीशन होंगी यहाँ पर दैट इज़ बाइल। बाइल इज सिक्रीटेड बाय द हेपेटोसाइट्स इन द लिवर, लिवर के हेपेटोसाइट से जो लिवर सेल्स से आ रहा है, इनटू द बाइल कैनेलिक्यूली, कैनेलिक्यूली यानी जो बाइल डक्ट्स हैं उसमें आएगा ये, फिर देन कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द गॉल ब्लैडर, यानी जो बाइल जो लिवर के अंदर जो स्मॉल कैनाल्स हैं उनको कैनेलिक्यूली कहते हैं, उससे ये फिर गॉल ब्लैडर में आएगा। एंड hepatic biliary system by the removal of sodium ion, chloride ion and water delivered to the duodenum, और फिर sodium ion, chloride ion और water and delivered to the duodenum। Bile is a complex aqueous mixture of organic solutes। और bile में क्या क्या चीज़ें होंगी? Bile acids, phospholipids, particularly lecithin, cholesterol and bilirubin। इसके अलावा inorganic compounds such as plasma electrolytes, sodium and potassium also present in the bile। बाइल क्या करेगा? बाइल पिगमेंट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज बिलिरुबिन आर एक्सक्रीटेड इन द फीसेस बट द बाइल एसिड्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द एन एक्टिव प्रोसेस इन द टर्मिनल इलियम। इसमें से जो है वो बिलिरुबिन जो है वो फीसेस के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। यही वजह है कि फीसेस का कलर जो है वो येलोइश सा होता है क्योंकि बिलिरुबिन इज़ येलो इन कलर। इसके अलावा बाइल एसिड्स जो होते हैं इसमें वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं टर्मिनल एलियम में और दोबारा लिवर में चले जाते हैं। जैसे आगे यह दे आर रिटर्न टू द लिवर वाया द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड एज दे हैव हाई हेपेटिक क्लियरेंस एंड आर री सिक्रेटेड इन द बाइल। लिवर में चले जाते हैं और फिर दोबारा बाइल में आके फिर कॉमन बाइल डक्ट से फिर इंटेस्टाइन में आते हैं, फिर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं पर्टिकुलरली फॉर द फैट्स और फिर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस तरह से ये सर्कुलेशन में चलते हैं। That is why this process is called enterohepatic recirculation. The main function of the bile are promoting the efficient absorption of dietary fat such as fatty acids and cholesterols by aiding its emulsification and micellar solubilization and provision of excretory pathways for degradation product. Main function क्या है बाइल का कि ये प्रमोट करता है एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट यानी फूड के साथ जो फैट लिया है, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स को कैसे करेगा? उनकी इमल्सिफिकेशन करेगा, माइसिलाइजेशन करेगा जिससे उसकी सॉल्युबलाइजेशन बढ़ेगी और उस तरह से जो है वो ये फैट्स को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है कोलॉन। इफ वी टॉक अबाउट द कोलॉन इज द फाइनल मेजर पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। It stretches from the ileocecal junction to the anus, यानी जहाँ से इलियम ख़त्म होती है उसके बाद जो जंक्शन है वहाँ से ये शुरू होता है और एनस तक चलता है एंड मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली द लास्ट 1.5 मीटर ऑफ 6 मीटर ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी टोटल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो तकरीबन 6 मीटर होता है उसका लास्ट 1.5 मीटर जो होता है वो कोलॉन होता है। अच्छा, इसमें क्या है? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सीकम which is around 85 millimeter in length, the ascending colon around 200 millimeter, the hepatic flexure which is transverse colon
which is usually longer than 450 millimeter, and the splenic flexure और the descending colon यानी spleen के साथ वाला colon का part जो कि descending colon है जो कि अराउंड 300 मिलीमीटर है, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट पार्ट दैट इज सिग्मोइडल कॉलोन दैट इज़ अराउंड 400 मिलीमीटर, और उसके बाद होता है रेक्टम एज शोन इन फिगर 19.6। फिगर 19.6 को हम देख लेते हैं। द एनाटॉमी ऑफ द कोलॉन, तो ये शुरू हो रहा है कहाँ से, ये इलियोसिकल जंक्शन, यहाँ से इलियम से ये आया, तो ये फिर असेंडिंग कोलॉन आया, ये हेपेटिक फ्लैक्चर से ट्रांसफर्स कोलॉन शुरू हो गया, फिर स्प्लीनिक फ्लैक्चर से यहाँ से डिसेंडिंग कोलॉन शुरू हो गया, यहाँ पर स्प्लीन भी मौजूद होती है, फिर ये सिग्मोइडल कोलॉन आ गया, फिर ये रेक्टम आ गया, और ये एनल कैनाल होगा। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, दी असेंडिंग कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन आर रिलेटिवली फिक्स्ड एंड दे आर अटैच वाया फ्लैक्चर्स एंड द सीकम, और ये फिक्स होते हैं, अटैच होते हैं फ्लैक्चर से या सीकम से। जैसे ये यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा हेपेटिक फ्लैक्चर से, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ होगा स्प्लीनिक फ्लैक्चर से। असेंडिंग कोलॉन भी इस तरह से यहाँ पर मौजूद होता है। इसके बाद जो है द ट्रांसवर्स कोलॉन एंड सिग्मोइडल कोलॉन आर मच मोर फ्लैक्सिबल, ठीक है, ये काफ़ी हद तक फ्लैक्सिबल है, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड सिग्मोइडल कोलॉन। The colon, unlike the small intestine, has no specialized villi. इसमें villi नहीं है. However, the microvilli of the absorptive epithelial cells and the presence of the crypts and the irregular folded mucosa serve to increase the surface area of colon by 10 to 15 times that of a simple cylinder. लेकिन इनके अंदर विलाई माइक्रोविलाई तो नहीं होते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ छोटी छोटी से माइक्रोविलाई टाइप सरफेसेस होती हैं, इर्रेगुलर सरफेसेस होती हैं, जिनको क्रिप्ट भी कहा जाता है, या इर्रेगुलर फोल्डेड सरफेसेस होती हैं, उसको भी क्रिप्ट कहा जाता है, जो यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं कोलॉन का 10 to 15 टाइम्स, जिसकी वजह से यहाँ पर भी काफ़ी हद तक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो सकता है और होता भी है। द सरफेस एरिया नेवरदलेस रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन बहरहाल इसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहरहाल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। द मेन फंक्शंस ऑफ कोलॉन आर, अब मेन फंक्शन कोलॉन के क्या हैं? द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड द वाटर फ्रॉम द ल्यूमेन इन एक्सचेंज फॉर बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम आयन, मीन्स के सोडियम आयन एब्जॉर्ब होगा, उसके एक्सचेंज में पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब होगा, बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा। दस द कोलॉन हैज सिग्निफिकेंट होम्योस्टेटिक रोल इन द बॉडी, मीन्स के इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस जो बॉडी का है उसमें इसका कोलॉन का बहुत बड़ा रोल है। यही वजह है कि जब डायरिया होता है तो ये सारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि कोलॉन जो है वहाँ पर फूड जो है वो रुक नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से सारी जो वाटर और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तेज़ी से एलिमिनेट हो जाती है। इसके अलावा द स्टोरेज एंड कॉम्पैक्शन ऑफ फीसेस, दिस इज़ अनदर फंक्शन ऑफ कोलॉन, कि स्टोरेज करना फीसेस को टेम्पररी और कॉम्पैक्ट करना। द कोलॉन इज़ परमानेंटली कॉलोनाइज्ड बाय एक्सटेंसिव नंबर and variety of bacteria, approximately 10⁻12 per gram of the content, यानी जो क्वांटिटी है इसकी तकरीबन जो बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद होते हैं, कॉलोनाइज होते हैं परमानेंटली, उनकी क्वांटिटी 10⁻12 पर ग्राम होते हैं, जिसको हम माइक्रोफ्लोरा भी या नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं। दिस लार्ज बैक्टीरियल मास इज़ कैपेबल ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद हैं ये बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाते हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड ईस्टर्स एंड द रिडक्शन ऑफ इनएक्टिव कॉन्जुगेटेड ड्रग्स टू द एक्टिव फॉर्म, और वो ड्रग्स जिनको रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है और उसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो प्रोसेस भी यहाँ होता है। सो दैट इज़ वाई वी शुड नो इट, कि हम एज ए फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट व्हेन वी आर मेकिंग ए ड्रग एंड वी वांट द ड्रग शुड बी रिलीज इन द लार्ज इंटेस्टाइन इन द कोलॉन बाय दिस बैक्टीरियल एंजाइम्स जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो फिर ड्रग जो हो वो इस एंजाइम से एक्टिव फॉर्म में आए और अपना रोल प्ले करे।
The bacteria rely on undigested polysaccharides in the diet and the carbohydrate components of the secretion such as mucus for their carbon and energy resources. जो बैक्टीरिया यहाँ पे हैं वो अपना फूड मटेरियल किससे लेते हैं? वो जो अनडाइजेस्टेड पॉलीसेक्राइड्स बच के या फीसेस की फॉर्म में आ गए उससे ले लेते हैं. इसके अलावा म्यूकस में जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें से जो है कार्बन और एनर्जी सोर्सेज ले लेते हैं. उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उससे अपना एनर्जी सोर्स पूरा कर लेते हैं और इस तरह से वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं. They degrade the polysaccharide to produce short chain fatty acids like acetic, propionic and butyric acids which lower the luminal pH and the gases hydrogen, carbon dioxide and methane. इसके अलावा ये क्या करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स के ज़रिए degrade the polysaccharide to short chain fatty acids like acetic acid, propionic acid, butyric acid जिसको ये यूटिलाइज कर लेते हैं. लोअर करते हैं लिमिनल पीएच को यहाँ पे और गैसेस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. Thus the pH of the cecum is approximately 6 to 6.5. This increases to approximately 7 to 7.5 towards the distal part of the colon. और जैसे जैसे कोलॉन में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं यानी असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसफर्स एंड डिसेंडिंग तो फिर ये pH 6.5 से 7.5 तक चला जाता है. ये pH हम जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जानें कि कौन सी ड्रग जो होगी वो इस पर्टिकुलर pH पर सॉल्युबलाइज अच्छी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी जो है वो डिग्रेड हो सकती है इस पर्टिकुलर pH पर. दैट इज़ वाई फॉर द ड्रग डेवलपमेंट वी शुड नो कि वहाँ पर पर्टिकुलर pH क्या होगा. रिसेंटली देयर हैज़ बीन मच इंटरेस्ट इन द exploitation of enzymes produced by these bacteria with respect to targeted drug delivery to this region of the gastrointestinal tract. इसके अलावा अभी कुछ ऐसी ड्रग भी प्रोड्यूस करने के बारे में रिसर्च की गई है और सक्सेसफुली कुछ ड्रग प्रोड्यूस भी की गई हैं जो टारगेटेडली यहाँ पे इस लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कोलॉन में आती हैं और फिर इन बैक्टीरियल एंजाइम से इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और फिर यहीं पर अपना ड्रग का रिस्पांस प्रोड्यूस करती हैं. ख़ास तौर से उस केस में लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो कोलॉन की और हमें लोकल इफेक्ट चाहिए तो फिर हम उसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं कराते बल्कि इसी एरिया में ड्रग को रख के उसका लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ताकि ड्रग जो है वो ब्लड में ना जाए और लोकली उसका रिस्पॉन्स जो है वो हम मॉनिटर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ द ट्रांजिट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? मीन्स टेम्पररी स्टे ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. यानी टेम्पररी स्टे जो होगा ड्रग्स का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो क्या होगा, किस तरीके से होगा और उसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं विच इन्फ्लुएंसेस द ड्रग डिग्रेडेशन, स्टेबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन. एज द ओरल रूट इज द one by which the majority of pharmaceuticals are administered. It is important to know how these materials behave during their passage through the gastrointestinal tract. अच्छा, as we know that the oral route is the most common route, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. इसी रूट से most of the pharmaceutical बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती हैं. That is why we should know कि जब ड्रग मटेरियल यहाँ से पास होगा तो उस पैसेज में what will happen with the drug. It is known that the small intestine is a major site of drug absorption and thus the time a drug is present in this part of the gastrointestinal tract is extremely important. हम अभी तक ये चीज़ कवर कर चुके हैं और ये जान चुके हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है वहाँ से ड्रग की एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है. दिस इज़ द बेस्ट साइट फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन. दैट इज़ वाई वी शुड नो कि एक ड्रग जब ओरली ली जाएगी तो फिर वो कितनी देर में यहाँ तक पहुँचेगी. इफ़ सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर बीइंग डिज़ाइंड, it is important to consider factors that will affect their behavior in a particular their transit time through certain regions of gastrointestinal tract. अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो कि सस्टेन रिलीज़ हो या कंट्रोल रिलीज़ हो जिसको हमें स्लो रिलीज़ मुसलसल कराना है तो फिर दैट फैक्टर्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर कि वहाँ पे वो ड्रग के मुख्तलिफ ड्रग जो GI ट्रैक्ट के मुख्तलिफ जो एनाटॉमिकल रीजन से गुजरेगी यानी इसोफेगस, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो उस जगहों पर जो ट्रांजिट होगा उसका ड्रग का, वहाँ पर ड्रग का बिहेवियर कैसे होगा और उसके बिहेवियर पर क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। In most journal, most dosage forms when taking in an upright position transit the esophagus quickly, usually in less than 50 seconds, and transit through the esophagus is dependent on both dosage form and the posture. आमतौर पे जब हम अपराइट पोजीशन पे यानी बैठ के या खड़े होकर कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो बहुत तेज़ी से इसोफेगस से गुजर के स्टमक में चली जाती है अराउंड लेस देन 15 सेकेंड में। लेकिन ये जो ट्रांजिट है इसोफेगस से, ये डिपेंड करता है डोजेज फॉर्म पे भी और पॉस्चर पे भी। टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स टेकन इन द सुपाइन यानी लाइंग डाउन पोजीशन, यानी लेट के जब ली जाता है, स्पेशली इफ टेकन विदाउट वाटर, और वो भी ली जा रही है बगैर पानी के, आर लाइबल टू लॉग और लॉज इन द इसोफेगस। ऐसा हो सकता है कि वो इसोफेगस में अटक जाए। एडिशन टू द इसोफेजियल वॉल कैन अकर as a result of partial dehydration at the site of contact and formation of a gel between the formulation and the esophagus। कि वो स्टमक इसोफेगस की वॉल के साथ क्यों एडहियर हो गई है, चिपक गई है, मे बी बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से, या ड्रग का और इसोफेगस वॉल के दरमियान एक जेल बन गया जिसने उसको वहाँ पे एडहियर कर दिया यानी चिपका दिया। द चांसेस ऑफ एडिशन विल डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। शेप इरेगुलर होगा, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, फार्मूलेशन की टाइप ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, तो इन फैक्टर से ये एडिशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ट्रांजिट ऑफ लिक्विड्स फॉर एग्जांपल हैज़ ऑलवेज बीन ऑब्जर्व टू बी रैपिड एंड इन जनरल फास्टर दैन द सॉलिड। हमने ये देखा है कि लिक्विड जो है वो बहुत तेज़ी से इसोफेगस से गुजर के स्टमक में आ जाता है कंपेयर टू सॉलिड सब्सटेंसेस। ए डिले इन रीचिंग द स्टमक में वेल डिले ए ड्रग्स ऑनसेट ऑफ एक्शन, और अगर ड्रग जो होगी वो डिले होगी इसोफेगस में और स्टमक में देर से आएगी तो फिर आगे भी देर से जाएगी और उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी डिले हो जाएगा। और इसके अलावा कॉज डैमेज और इरिटेशन ऑफ द इसोफेजियल वॉल, लाइक फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट जो कि डैमेज कर सकती है इसोफेजियल वॉल को। इसके अलावा एक और ड्रग है जो कि डैमेज कर सकती है इसोफेजियल वॉल को, दैट इज़ एलेंड्रोनेट और अदर बिसफॉस्फोनेट सॉल्ट्स। ये भी, इसमें भी ये प्रॉब्लम है, एलेंड्रोनेट, रिजोड्रोनेट, आइबेंड्रोनेट, ये सॉलिड टैबलेट फॉर्म होती हैं, ये भी अगर इसोफेजियल वॉल पे एडहियर हो जाएं तो ये इसोफेजाइटिस यानी इसोफेजियल वॉल की रप्चर करते हैं इरिटेशन के ज़रिए। तो इस वजह से दे मस्ट बी टेकन विद फूड, मस्ट बी टेकन विद वाटर एंड इन अपराइट पोजीशन, लाइंग डाउन या सुपाइन पोजीशन में नहीं लेना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज गैस्ट्रिक एम्पटीइंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गैस्ट्रिक एम्पटीइंग किस तरीके से होगी और अगर उसमें डिले होगा तो उससे फिर ड्रग के पे क्या इफेक्ट हो सकता है। द टाइम ए डोजेज फॉर्म टेक्स टू ट्रैवर्स द स्टमक इज यूजुअली टर्म्ड द गैस्ट्रिक एम्पटीइंग टाइम, गैस्ट्रिक एम्पटीइंग रेट, गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम और गैस्ट्रिक एम्पटीइंग रेट, यानी कितनी देर में ड्रग जो है वो स्टमक से निकल के आगे पहुंचती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम, गैस्ट्रिक एम्पटीइंग टाइम, गैस्ट्रिक एम्पटीइंग रेट। मीन्स कि गैस्ट्रिक एम्पटीइंग टाइम जितना ज़्यादा होगा ड्रग उतनी ही देर स्टमक में रहेगी और देर से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में देर से पहुंचेगी तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देर से स्टार्ट होगा, और जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देर से स्टार्ट होगा तो फिर ड्रग का इफेक्ट भी देर से आएगा, या हम ये कहेंगे गैस्ट्रिक एम्पटीइंग रेट स्लो है। गैस्ट्रिक एम्पटीइंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इज़ हाईली वेरिएबल। जो गैस्ट्रिक एम्पटीइंग है फार्मास्यूटिकल की वो बहुत वेरिएबल है एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन द डोजेज फॉर्म एंड द फेड एंड फास्टेड स्टेट ऑफ द स्टमक, और डोजेज फॉर्म पे भी डिपेंड करती है और स्टमक जो है वो फेड स्टेट पे यानी फिल्ड है फूड से या फास्टेड है, एम्प्टी है। नॉर्मल गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम यूजुअली रेंज फ्रॉम 5 मिनट टू 2 आवर। जो नॉर्मल रेजिडेंस टाइम है गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम है वो 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक होता है। ऑल्दो मच लॉन्गर देन ग्रेटर देन 12 आवर हैव बीन रिकॉर्डेड पर्टिकुलरली फॉर लार्ज सिंगल डोजेज यूनिट्स। कुछ केसेस में कोई ऐसा हैवी मील लेने के बाद मोर देन 12 आवर भी हो सकता
अच्छा, इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ में भी गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट स्लो हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. In the fasted state, the electrical activity in the stomach, the interdigestive myoelectric cycle or migrating myoelectric complex, as it is known, governs its activity and hence transit the dosage form. अच्छा, अब ये जैसे एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसी तरह से एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, और फिर उसके बाद फिर पर्टिकुलर जो सेल्स हैं उनका अपना एक सिस्टम है, जैसा स्टमक के अंदर होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिसको हम माइग्रेटिंग मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, दैट गवर्न्स इट्स एक्टिविटी, और वो ट्रांजिट ऑफ डोजेज फॉर्म को गवर्न करता है, यानी कंट्रोल करता है. ये क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिंग साइकिल ऑफ 4 फेजेस. इसके 4 फेजेस होते हैं. फेज़ 1 क्या है? फेज़ 1 इज़ ए रिलेटिवली इनएक्टिव पीरियड ऑफ 40 to 60 मिनट with only rare contractions occurring, यानी जो 42 फेज़ 1 में क्या होगा, स्टमक में 40 to 60 मिनट्स इसका ड्यूरेशन होगा. इसको हम कह रहे हैं इनएक्टिव पीरियड, और इसमें बहुत रेयर है कि स्टमक में कोई कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी. फिर उसके बाद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अकर इन फेज़ 2. फेज़ 2 में कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगी तो हम उसको कहेंगे कि ये फेज़ 2 है, विच हैज़ सिमिलर ड्यूरेशन टू द फेज़ 1, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड भी 40 to 60 मिनट्स चलेगा. फिर फेज़ 2 के बाद आ जाएगा, देन वी हैव फेज़ 3. व्हाट इज़ फेज़ 3? कैरेक्टराइज्ड बाय पावरफुल पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, बहुत पावरफुल पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, विच ओपन्स द पाइलोरिस और पाइलोरिक स्फिंक्टर एट द बेस एंड क्लियर द स्टमक एंड एनी रेजिडुअल मटेरियल. जो भी स्टमक का मटेरियल होगा उसको क्लियर करेगा और उसको पहुंचा देगा वो बिला फिर स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज समटाइम्स कॉल्ड हाउस कीपर वेव. इसको हाउस कीपर वेव भी फेज़ 3 को कहते हैं. आफ्टर द फेज़ 3, फेज़ 4 स्टार्ट. फेज़ 4 इज ए शॉर्ट ट्रांजिशनल पीरियड, वेरी स्मॉल पीरियड बिटवीन ए पावरफुल एक्टिविटी ऑफ द फेज़ 3 एंड द इनएक्टिविटी ऑफ द फेज़ 1. यानी ये क्या है? पावर फेज़ 4, ए ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द पावरफुल एक्टिविटी ऑफ फेज़ 3 एंड इनएक्टिविटी ऑफ द फेज़ 1. यानी फेज़ 3 के बाद एक फेज़ आएगा फेज़ 4, बहुत छोटा सा पीरियड होगा ये, और उसके बाद दोबारा फेज़ 1 आ जाएगा जो कि 40 to 60 मिनट रहेगा, जिसमें जो कि इनएक्टिव पीरियड होगा और जिसमें देयर इज़ वेरी रेयर चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन द मसल्स ऑफ द स्टमक. तो ये है बेसिकली मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स और मायोइलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द स्टमक. इसको भी अंडरस्टैंड करना हमें ज़रूरी है व्हेन वी आर डेवलपिंग ए ड्रग. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, द साइकिल रिपीट इटसेल्फ एवरी 2 आवर until a meal is ingested and the fed state और motility is initiated. ये साइकिल हर 2 घंटे के बाद रिपीट होगी मील के लेने के बाद. एंड इन दिस स्टेट 2 distinct पैटर्न ऑफ एक्टिविटी हैव बीन ऑब्जर्व्ड. द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द, जो 2 डिस्टिंक्ट एक्टिविटी हैं वही हैं फेज़ 2 और फेज़ 3 वाली, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टमक रिलैक्सेस टू रिसीव द फूड. जो स्टमक का पहला पार्ट होगा वो इस फूड को रिसीव करेगा, एंड ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रीजन मूव द कॉन्टेंट डिस्टली यानी डिस्टल पार्ट तक लेकर जाएगा. पेरिस्टल्सिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक सर्व्स टू मिक्स एंड ब्रेक डाउन फूड पार्टिकल एंड मूव देम टूवर्ड्स द पाइलोरिक स्फिंक्टर. और ये जो पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है, एक तो ये क्या करेगी, जो भी फूड मटेरियल है उसको मिक्स और ब्रेक डाउन करेगी स्मॉल पार्टिकल्स में और उसको मूव करेगी टूवर्ड्स द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ताकि पाइलोरिक स्फिंक्टर से फिर ये जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाए. द पाइलोरिक स्फिंक्टर allows liquids and small particles यानी काइम की फॉर्म में to empty while other material is retropulsed into the antrum of the stomach and is caught up by the next peristaltic wave for further size reduction before empty. यानी वो पार्टिकल, वो सब्सटेंसेस जो कि
पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरफ गए थे, लेकिन अगर उन जो लिक्विड और काइम फॉर्म में, जो पेस्ट फॉर्म में था, वो तो निकल जाएगा आगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, लेकिन जो अभी भी बड़े साइज़ का मटेरियल है वो रेट्रोपल्स यानी वापस चला जाएगा एंट्रम में, और फिर दोबारा पेरिस्टल्सिस से फर्दर साइज़ रिड्यूस होगा, उसका काइम की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर पेरिस्टल्टिक वेव दोबारा इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर तक लेकर आएंगी, और जब इसका साइज, पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा हो चुका होगा और ये लिक्विड या काइम फॉर्म में जा चुका होगा, देन इट विल एंटर पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको रिलीज़ कर देगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लिहाजा thus in the fed state, liquid pellets and disintegrated tablets will tend to empty with food, yet large sustained release or controlled release dosage form can be retained in the stomach for long period. लिहाजा वो लिक्विड फैड स्टेट में लिक्विड सब ड्रग्स, पैलेट्स या डिसइंटीग्रेटेड टैबलेट्स जो कि स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो तो फूड के साथ बहुत तेज़ी से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट द लार्ज साइज सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स और कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन रहेंगी फॉर अ बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। इन द फास्टेड स्टेट ऑफ स्टमक is less discriminatory between the dosage form types, with emptying appearing to the exponential process and being related to the point in MMC at which the formulation is ingested। लेकिन जब स्टमक फास्टेड स्टेट में होगा, एम्प्टी फॉर्म में होगा, तो फिर ये मायोइलेक्ट्रिक एक्टिविटी जब चल रही होगी तो फिर ये पार्टिकल साइज़ का जो डिफरेंस है ये इतना ज़्यादा काउंट नहीं करेगा और ड्रग बड़ी तेज़ी से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और आगे चली जाएगी। लेकिन फेड स्टेट में जो होगा ये फिर लार्ज साइज़ जो होगी वो रेट्रोपल्स मूवमेंट के ज़रिए वापस चली जाएगी और जब तक आगे नहीं जाएगी जब तक के स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस गैस्ट्रिक एम्प्टी, बहुत सारे फैक्टर्स गैस्ट्रिक एम्प्टी को असरअंदाज होते हैं, एज वेल एज द टाइप ऑफ द डोजेज फॉर्म एंड द प्रेजेंस ऑफ द फूड, यानी वो फैक्टर में टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म भी है, प्रेजेंस ऑफ फूड भी है। इसके अलावा इंक्लूड पॉस्चर, द कंपोजिशन ऑफ द फूड एंड द इफेक्ट ऑफ द ड्रग एट द डिजीज स्टेट, यानी ड्रग का इफेक्ट भी होता है बाज़ दफ़ा कि वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो कर देती है, डिजीज स्टेट लाइक डायबिटीज़ और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे मैंने बताया। इन जनरल फूड पर्टिकुलरली फैटी फूड्स डिले द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, ये बात आपने नोट भी की होगी, जब आप बहुत हैवी फैटी मील लेते हैं तो वो देर से डाइजेस्ट होता है और वो स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है, उसकी वजह ये होती है कि वो डिले कर देता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और इस वजह से when it delays the gastric emptying, so and hence the absorption of the drug will also be delayed. Therefore, a drug is likely to reach the small intestine most rapidly if it is administered with water to a patient whose stomach is empty। लिहाजा इससे हम ये conclude कर सकते हैं कि if the drug is taken with water on an empty stomach, तो वो बहुत रैपिडली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी और तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो इस तरह से जो है वो ड्रग के बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। soon we will come back with our another lecture that is small intestine transit. Thank you very much.